आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। Hello students, how are you? Hope you are fine. I am Ghulam Hassan Rishi from SCRT J&K School Education Department. I am going to deliver you a very important lecture on electrochemistry. You know that in your class 12th chemistry, in the physical chemistry portion, you have 5 chapters. Number first is the solid state, number second is the solution, number third is the electrochemistry, and number fourth is the kinetics, and number fifth is the surface chemistry from the physical chemistry portion. Today we are going to have a look on the electrochemistry, which is the very most important and essential chapter from the physical chemistry, and is a scoring chapter from both the board of school education point of view and the NEET and JEE. What is electrochemistry? Before going to tell the definition of the electrochemistry, let us have a look to your previous knowledge, what you have learned in the class 11th. If you remember that in class 11th, you had a chapter redox reactions. In the redox reactions, you know that we have certain types of cells which we have to discuss in detail in class 12th. One type of the cell is the electrochemical cell. Electrochemical cell. What is electrochemical cell? हाँ बेटा electrochemical cell क्या है? क्लास 11th में आपने इसको इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, लेकिन पढ़ा है, you have the previous knowledge of class 11th. What is electrochemical cell? Electrochemical cells, as you see in day to day life, that whether it is this mobile phone, it is the watch, many gadgets, we use these electrochemical cells. These are the devices in which chemical energy is changed into electrical energy. These are the cells where chemical energy is changed into electrical energy. By spontaneous redox reactions. Actually, what happens that in the electrochemical cells, this redox reactions occurs. You know what are the redox reactions? Redox reactions beta क्या चीज है? Redox reactions वो reactions, yes, you write down that redox reactions are those reactions in which oxidation and reduction takes place simultaneously. A chemical reaction where oxidation and this reduction are complementary to each other. If the reduction occurs, oxidation takes place. Oxidation is accompanied by reduction of another substance. We will discuss them in the detail in this chapter, but those redox reactions are spontaneous. खुद ब खुद होना, ये रिएक्शन जो है खुद occur होती है. So these are the cells where spontaneous redox reactions takes place, and by dint of those redox reactions, उन redox reactions की वजह से we get the electrical energy. Actually, what happens that during these reactions, the chemical energy gets changed into electrical energy. This chemical energy gets changed into electrical energy. Chemical energy stored in these ions, in these chemicals, this gets changed into electrical energy. Is it fine? Any difficulty? No difficulty at all. Chemical energy gets changed into the electrical energy. We have some other types of cells, devices, where this electrical energy is used to bring the chemical change. We have the cells जहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन जो है ऑकर करवाते हैं. That means electrical energy is changed into chemical energy, but these reactions are non-spontaneous. So if you recall that
electrolysis of the sodium chloride, we have to learn this in this chapter, that by dint of the electricity, the electrolysis of the sodium chloride takes place. We get the sodium positive and chlorine negative, then there is a generation of sodium metal deposit होता है और chlorine gas जो है वो produce होता है. We will see that which type of which metal is deposited and which gas is produced, किस medium में इस reaction को हम कर रहे हैं. We will see that later on. But our point is here that this reaction, ये जो electrolysis of sodium chloride है, it occurs because of the electrical energy. That means electrical energy is used to cause chemical reaction. These are non-spontaneous reactions, and here this is the spontaneous reaction where chemical energy is changed into electrical energy. You know that we have a lot of forms of energy available, and these forms of energies are interconvertible. That means if one form of energy is being changed into other forms of energy. एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में, से केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, potential energy into kinetic energy is stored as potential energy. You know these things. The study of this interconvertible of chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy, the branch of the chemistry or the branch of the physical chemistry where we study these things, where we study these whole phenomena, how this occurs, how these electrochemical cells work, how these electrolytic cells work, what is the electrolyte, what are the various factors which affect the electrolysis, and what are the fuel cells, what is the corrosion. All these things we have to learn is in electrochemistry. So what is electrochemistry? You write down that electrochemistry is the branch of chemistry, branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion of electrical energy into chemical energy and vice versa, or conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into the chemical energy. This is the electrochemistry. So if you write down that electrochemistry, it is the branch of chemistry, branch of physical chemistry which deals with the study of interconversion of chemical energy into electrical energy, and vice versa. कहीं electrical energy is being changed to the chemical energy and sometimes chemical energy is changed into the electrical energy. ऐसे आप लिख सकते हो कि ये इसमें चेंज होती है और ये इसमें चेंज होती है. तो इसको जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इज इट ओके? यस. So if you recall the galvanic cell, famous galvanic cell, we will study this in this chapter, famous galvanic cell, where what happens is that zinc plus copper 2 positive, aqueous, zinc solid, this gives Zn2 positive and copper. Here what has happened is that the zinc has oxidized, the zinc has lost 2 electron, whether this copper has gained these 2 electrons. So जिंक की ऑक्सीडेशन और कॉपर की रिडक्शन, एक चीज की ऑक्सीडेशन हो गई है, जिंक हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन्स. इफ यू रिकॉल दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बेटा आराम से समझिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको आराम से समझिए कि ऑक्सीडेशन स्मॉल टर्म्स है. कभी due to the continuous these school closures we are not acquainted with these things, but the department has taken this initiative for you tele classes का. तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए. the loss of electron, that is the oxidation. Electron or electrons, that is the oxidation.
and gain of electron or electrons by a chemical species is the reduction. That process is called a reduction. That process is called a reduction. If you see here, the zinc has zero oxidation state, means that zinc has no charge here. The zinc metal has no charge, but the copper here has +2 oxidation state. The copper has +2 oxidation state. Once the reaction has occurred, this zinc has got again +2 oxidation state. That means the oxidation state of zinc has increased. The oxidation state of zinc has increased to +2. फ्रॉम 0 to +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इंक्रीज हो गया है, मतलब कि जिंक हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. द जिंक हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. वेल दिस कॉपर हियर, दिस कॉपर, दिस हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, दिस हैज गेन्ड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो बेटा 0 हो गया है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इंक्रीज हो गया है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक हैज इंक्रीज्ड. It has lost the 2 electrons. That process is called oxidation. Whereas the oxidation state of this copper has decreased from +2 to 0. That means it has gained the 2 electrons, and the gain of the electrons is called reduction. बहुत अच्छा. So what is the reduction? Gain of the electrons. Sir, इस reaction में जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया है. कॉपर ने सर 2 इलेक्ट्रॉन उसको गेन किया है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 से 0 आ गया है. सो इन दिस रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन हैज टेकन प्लेस. सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन जो ऑकर होगी है. रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक प्लेस होगी है. सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. लेकिन इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से हमने क्या किया है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया है. सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो वी हैव अ लॉट ऑफ such cells now available. We have a lot of such cells available and we will study them in detail in this chapter. This is the example where chemical energy has been changed into the electrical energy. Chemical energy has been changed into electrical energy. You know that if you take the example of water, वाटर की एग्जांपल हम लेंगे तो वाटर में जो वाटर की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं, वाटर को हम ब्रेक कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस. वी आर गेटिंग द हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस. बेटा आपके पास वाटर है तो ऐसे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होने वाला है. जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इन सम लैब, हमारे पास जो उस किस्म के अपैरेट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होती है, अपैरेट्स होता है, तो in a specified place that is the laboratory या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, तो जहां पर एक खास किस्म का वोल्टेज देके, खास किस्म के apparatus यूज करके वाटर को हम ब्रेक करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, लेकिन दिस इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कभी वाटर जो है खुद ब खुद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होने वाला है. हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं. इलेक्ट्रिसिटी जब हमने दे दिया है तो ये केमिकल रिएक्शन ऑकर होगी है. सो हियर द पॉइंट इज टू नोट इज दैट दिस रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस. नंबर फर्स्ट, ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस. कभी वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग. अंडर नेचुरल सर्कमस्टेंसेस ये चेंज नहीं होने वाला. यू हैव द वाटर ऑफ गिलास, इट विल रिमेन एज वाटर. इट विल नॉट चेंज बाय हीटिंग, इट विल चेंज विद द वेपर्स, वाटर वेपर. इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये ब्रेक नहीं होने वाला है. इज इट क्लियर? सो जब हमने अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास की है, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो what has happened is that this water has changed into the oxygen and hydrogen gas. कैसे? हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया है. सो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करके क्या किया है, हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाई है, वाटर को ब्रेक किया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में. सो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ओर से हमने केमिकल रिएक्शन करवाई है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई है. सो बाय डिंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वी हैव कॉज्ड द केमिकल रिएक्शन. जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां से दे दी है वो किसमें चेंज हो गई है, केमिकल एनर्जी में. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रिएक्शन में केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई है. सो दिस is the example where
electrical energy is changed into chemical energy. The study of these such reactions, electrolytic cell, electrochemical cell, इस सारे स्टडी को हम इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं. So is it clear what is electrochemistry? If we repeat, yes, electrochemistry is the branch of chemistry where we study the interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. So we have taken the two examples. We have the two types of cells. One is the electrochemical cell. What is electrochemical cell? Electrochemical cells are those cells where spontaneous redox reactions take place, occurs, spontaneous redox reactions occurs, and by those spontaneous reactions chemical energy is changed into electrical energy. Whereas in electrolytic cell the electrical energy is changed into chemical energy. The study of these whole things that constitutes the electrochemistry. So number second is that what is electrolyte? What is beta electrolyte? Yes, you know down electrolyte क्या चीज होता है. Or before going to the electrolyte, you know that what are the conductors and what are the insulators? Yes, conductors क्या चीज होते हैं? सर ये कंडक्टर्स तो हमने 7th क्लास से 6th क्लास से 5th 3rd से ही पता है कंडक्टर्स क्या चीज होते हैं. वो चीज तो यहां पर बताने की क्या जरूरत है, एक पर्पस है. कंडक्टर्स आर द सबस्टेंसेस विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्टर्स दोज सबस्टेंसेस दैट मटेरियल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, दोज आर कॉल्ड द कंडक्टर्स. यू नो दैट ऑल द metals are conductors. They are good conductors of electricity. Good conductors, including a non-metal. Yes, कौन सा non-metal बेटा? कार्बन. कार्बन की कौन सी फॉर्म? Yes, ग्रेफाइट. Very good. कार्बन का ग्रेफाइट जो है, it is a good conductor of electricity. And what are these insulators? Yes, insulators. Sir, those which do not conduct electricity, वो materials which do not conduct electricity, जो electricity को conduct नहीं करते, do not conduct electricity. सर नॉन मेटल्स हमारे पास है, वुड है सर, जो भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, जनरली दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बट समटाइम्स जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक्स देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स देखेंगे, तो वी विल फाइंड दैट जो कभी कभी जो आयनिक फॉर्म में होते हैं, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. सो जनरली द नॉन मेटल्स आर गुड बैड कंडक्टर्स, दे आर इंसुलेटर्स, एंड इंसुलेटर्स आर द सबस्टेंसेस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जहां पर कंडक्टर्स का ताल्लुक है बेटा, सो फॉर द कंडक्टर्स आर कंसर्न, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स. We have two types of conductors. One are the metallic conductors. Metallic conductors and other are the electrolytic conductors. Electrolytic conductors. One is the metallic conduction. You can see the metal, we have the two types of conductions, metallic conduction and electrolytic conduction. Electrolytic conduction. So metallic conduction, you know that these are the metals which conduct the electricity by dint of the free electrons. So metals में free electrons है, free electrons की ओर से they conduct the electricity, they carry the energy from one place to other place due to the electrons. कैसे वो होता है? तो you have the current electricity for that from the physics portion, you will study there. But छोटे मोटे लफ्जों में हम यहाँ पर इसकी तशरीह करेंगे. We will try to understand that free electrons metals में होते हैं, and in the metallic conductors we know that the some metals are very good conductors and some metals जो है उतने अच्छे conductors नहीं है, उनकी conductance उतनी ज्यादा नहीं है. That means some metals में जो resistance होती है, we will see the resistance. What is the resistance? Resistance ज्यादा होते हैं. कुछ metals में से gold में जो है resistance बिल्कुल कम है. That gold is the good conductor, very good conductor of electricity. Metallic conductors में
हम ये देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो उनकी कंडक्शन है वो डिक्रीज होती है। क्यों वो डिक्रीज होती है? क्योंकि उनके जो न्यूक्लियस जो होते हैं, कर्नल्स जो होते हैं, वो मोशन में आते हैं एंड दे कॉज द इंपीडेंस, वो जो है रुकावट बना देते हैं फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट जो है वो कैरी नहीं होती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है कि उनकी जो कंडक्टेंस है, उनकी जो कंडक्शन है, उनकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है। एक्चुअली रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है बाय टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, और जो कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती है। कंडक्टेंस इज विद विच दे कैरी द इलेक्ट्रॉन्स, दे कैरी द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो डिक्रीज होती है। सो इन मेटेलिक कंडक्टर्स करंट इज बीइंग कैरिड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और कंडक्टेंस जो वो डिक्रीज होती है। और मेटेलिक कंडक्टर्स में, मेटेलिक कंडक्शन में यू विल फाइंड दैट मैटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर नहीं होता है। मेटल इज नॉट बीइंग कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। So far as the electrolytic conduction is concerned, before going to electrolytic conduction, we will see what are the electrolytes. Electrolytes बेटा क्या चीज होते हैं, ये चीज क्लियर बेटा? मेटेलिक कंडक्टर्स क्या चीज होते हैं? सर मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? वो मेटेलिक कंडक्टर्स आर द substances which carry the electricity from one point to other point, which carry the electricity. और मेटेलिक कंडक्टर्स में हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कैरिड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कर्नल्स मोशन में आते हैं, रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है और कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, और मैटर जो है फ्लो नहीं होता है। नो मैटर इज डिस्प्लेस्ड, मैटर की कोई जो है डिस्प्लेस नहीं होता है। कि आपको कहेंगे कि एटम ये जो है ये मेटल है यहां पर, तो इसका एटम यहां से जाके यहां आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। So far as the electrolytic conduction is concerned, we should know what is the electrolyte. For that, first of all, we should know what is the electrolyte. So, what is the electrolyte? But electrolytes are the substances which are made up of ions, जो आयन से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है, आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड, आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है सॉलिड। इफ यू सी दीज थिंग्स, दीज थ्री सबस्टेंसेस, पोटेशियम क्लोराइड, sodium chloride solid, magnesium chloride solid, they are all bad conductors in the solid state. They don't carry the electricity in solid state. They are the bad conductors. Is it okay? Sodium chloride, is it best conductor? No sir, it's a bad conductor. In which state? In the solid state. What about the potassium chloride? Bad conductor in solid state. What about the magnesium chloride? Bad conductor in the solid state. Say you have here water, you have a beaker, और बीकर में आपने जो है बेटा वाटर है, प्योर डिस्टिल्ड वाटर विदाउट एनी इम्प्योरिटी, और यहां पर आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया है. वी विल सी व्हाट इज द इलेक्ट्रोड. So you will find that this water does not carry any electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रही है. और आपने यहां से देखा है कि this sodium chloride does not also conduct the electricity in the solid state. But once you are dissolving this sodium chloride in this water, in this beaker, you will find that this solution now, this solution carries the electricity. So how this carries now the electricity? It is because of the fact that this sodium chloride, जो ही हमने इसको वाटर में डाल दिया, ये वाटर की ओर से ये सोडियम क्लोराइड जो है ये सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन में चेंज होता है, ब्रेक होता है बाय dint of the action of water, because water has a very high dielectric constant. Water has a very high dielectric constant. Water is a polar solvent. What the water does here that जो ही ये सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, कौन सा बॉन्ड इसके दरमियान है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान आयनिक बॉन्ड. वेरी गुड, आयनिक बॉन्ड. सो दिस इज द आयनिक कंपाउंड. इन द सॉलिड स्टेट दिस आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये लिख लिया. सॉलिड स्टेट में these
these compounds, potassium chloride, sodium chloride, magnesium chloride and other compounds in the solid state, they does not conduct the electricity. But once we have put them in the liquid state, पोलर मीडियम में जब हमने इनको डाल दिया है, बेंजीन में डालोगे तो वहां पर ये डिजॉल्व नहीं हो जाएगा. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट अवर मीडियम शुड बी पोलर. आपने वाटर ले लिया है, वाटर इसको क्या कर रहा है बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है, ये जो वाटर है, वाटर यू नो दैट वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल. इसमें यहां पर ऑक्सीजन को डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन को डेल्टा पॉजिटिव है, यहां पर भी दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, वहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, लेकिन बोर्ड पर जो है 2-3 वाटर मॉलिक्यूल्स मैं आपको दिखा रहा हूं. बोर्ड पे 2-4 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखा रहा हूं. ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन कर रहा है. भाई सोडियम पॉजिटिव को यहां पर नेगेटिव वाटर का इंटरेक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो रही है. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. यहां पर क्लोराइड आयन जो है, यहां से इसका वाटर का जो है H पॉजिटिव बेटा आ रहा है, वो इंटरेक्शन कर रहा है. इस वाटर मॉलिक्यूल का ये डेल्टा H पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट जो है इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कर रहा है. जब इंटरेक्शन उतनी ज्यादा हो गई है, यहां पर इतनी ज्यादा इंटरेक्शन हो गई है कि एनर्जी ज्यादा आ गई, एनर्जी ज्यादा आ गई. वी विल सी अहेड कि वेदर द एनर्जी कम्स आर नॉट. लेकिन यहां पर इस इंटरेक्शन की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, यहां इस पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और ये जो उनके दरमियान बॉन्ड है ये वीक पड़ जाता है, और तो ये मॉलिक्यूल, ये जो कंपाउंड है ब्रेक हो जाता है. तो दिस गेट्स ब्रोकन डाउन. तो ये क्लोराइड अलग, ये सोडियम पॉजिटिव अलग, सोडियम पॉजिटिव आयन अलग, कैटायन अलग, और क्लोराइड आयन जो है ये अलग हो गया है. सो वाटर ने क्या काम किया है, वाटर ने इस आयनिक बॉन्ड को ब्रेक किया है. जो ही सोडियम क्लोराइड ने हमने वाटर में इसको डाल दिया है, ये जो आयनिक बॉन्ड ये ब्रेक हो गया है. समझ में आ गया. सो बाय पुटिंग द सोडियम क्लोराइड इन द वाटर, व्हाट हैज हैपेंड दैट वाटर हैज ब्रोकन डाउन. वाटर जो है, वाटर ने इसको एक दूसरे से सेपरेट किया है. द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वाटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करता है. दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जल्दी तेजी से ब्रेक कर रहा है. सो अब ये सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया और ये क्लोराइड नेगेटिव आयन बन गया. तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव पोटेंशियल, दिस पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, और जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है. समझ में आ गया. क्लोराइड आयन, कोई भी नेगेटिव आयन अब जो है, ये नेसेसरी नहीं है कि क्लोराइड है, कोई और नेगेटिव होगा, एन नेगेटिव होगा, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे. दिस मूवमेंट ऑफ द आयन्स, दिस इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ कैरिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ये जो है कंडक्शन के लिए जहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाई करती है, वो किस पर लाई करते हैं, क्लोराइड आयन पर और सोडियम आयन पर. ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी अब कैरी कर रही है, ये क्लोराइड आयन पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, सोडियम आयन जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है. सच कंपाउंड्स जिनको हम ब्रेक कर रहे हैं, जिनको हम पुट कर रहे हैं सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट में वो ब्रेक होते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स एंड देन कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, such compounds are called electrolytes. So what are the electrolytes? Sir, electrolytes वो substances है जो solid state में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे. नंबर फर्स्ट बात ये है. नंबर सेकंड थिंग, जिनको हमने लिक्विड में, एक्वस मीडियम में, वाटर में डाल दिया, तो वहां पर वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में चेंज हो गए. कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स में चेंज होने के बाद क्या हो गया है कि दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, खुद ब्रेक हो रहे हैं. So those substances, they are called the electrolytes. And the process, अब इलेक्ट्रिसिटी ने इनको ब्रेक करवा दिया है, इधर उधर चले गए. The process of breaking this electrolyte into the constituent ions, that is called the electrolysis. So two terms आपने यहां पर सीखे हैं. One is the electrolysis and what is the electrolyte. So what is the electrolyte? Sir, वो substances, when we dissolve them in the aqueous medium or water, simply water, they break into their constituent ions and then they conduct the electricity in the aqueous medium. Such substances are called electrolytes, and the process of breaking
the electrolyte into their constituent ions, that is the electrolysis. So far as electrolytes are concerned, we have two types of electrolytes. One is strong electrolyte, and other is the weak electrolyte. We have strong electrolytes and we have the weak electrolytes. Sir, what are the strong electrolytes? Strong electrolytes are those electrolytes जो completely break होते हैं into their constituent ions. Number first, जो completely break हो रहे हैं, completely break into their constituent ions. जो completely break होते into their constituent ions. For example, we have the sodium chloride, we have the potassium chloride. Say sodium chloride break होता है Na positive Cl negative में, potassium chloride break होता है K positive plus Cl negative. We have MgCl, Mg2 positive plus Cl negative, and we have the HCl or sulfuric acid. Sulfuric acid is also a strong electrolyte. We have the acids, we have the HCl. This is a strong electrolytes. This is a strong electrolyte. Rather जो H पॉजिटिव है HCl में, मैं आपको आगे बताऊंगा कि HCl जो है इसकी जो कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा है. सो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको याद रखिए कि जो HCl जो है, जब आप बुक देखोगे, अपनी बुक देखोगे, तो जब आप HCl की कंडक्टेंस देखोगे, यू विल फाइंड दैट HCl हैज एक्सेप्शनली हाईएस्ट कंडक्टेंस. दो जब इसको हम वाटर में डाल देते हैं बेटा, जब हम इसको वाटर में डाल देते हैं, ये इस तरह बना देता है वहां H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव वाटर के साथ और Cl नेगेटिव, और इसकी जो है एक्सेप्शनली हाईएस्ट कंडक्टेंस है. सो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट. कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस सल्फ्यूरिक एसिड. सो दे आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. सो व्हाट आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? एक बार फिर अगर देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या चीज है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली ब्रेक होते हैं इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो भी साल्ट्स है, जब भी हम साल्ट को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो इट ब्रेक्स डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस. सो इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो व्हाट आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? सर व्हाट आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो मीडियम के साथ इक्विलिब्रियम बना देते हैं. यस सर, लास्ट ईयर कुछ सुना था इक्विलिब्रियम में. इक्विलिब्रियम शायद पढ़ा है लास्ट ईयर में, 11th क्लास में आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर था. तो फॉर एग्जांपल वी हैव NH3. जब हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो इट ब्रेक्स डाउन लाइक दिस, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. सो वी हैव दिस NH4 OH. दिस इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज ये इक्विलिब्रियम बना देता है, इसने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया है. सिमिलरली यू हैव दिस कंपाउंड CH3CeOOH. व्हाट इज द कंपाउंड? जरा इस कंपाउंड का नाम बताइए. यस, आराम से. अगर स्ट्रक्चर इसका बनाओगे इस कंपाउंड का, हाँ बेटा, CH3C डबल बॉन्ड OOH. सर ये एसिटिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सर. दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड दिस इज द एसिटिक एसिड. दिस इज द एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है. एंड आयुपैक नेम, यस, आयुपैक नेम जो बेटा है वो है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड. दिस इज आयुपैक नेम. जब हम इसको वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में ये बना देता है एसिटेट आयन CH3COO नेगेटिव प्लस यस H3O पॉजिटिव. सो इक्विलिब्रियम में आप देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में है, प्योर आयन नहीं आया है, ये ब्रेक हो गया आयन इसमें, लेकिन सारा ये डिसोसिएट नहीं हो गया है. द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो. रिमेंबर दिस थिंग. दिस कंपाउंड हैज ब्रोकन डाउन इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो गया है, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो गया. आयोनाइज हो गया है लेकिन कंप्लीटली नहीं हो गया है.
इसकी जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो वेरी लो है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो। एंड इफ यू रिकॉल द ली चैटलर्स प्रिंसिपल, अगर इसमें डाइल्यूशन हम ज्यादा करेंगे, डाइल्यूशन हम ज्यादा करेंगे, मोर एंड मोर वाटर वी विल ऐड, ये जो है ज्यादा आयन्स प्रोड्यूस होंगे, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट साइड। ओके, अगर हम वाटर इसमें, इफ यू सी दिस रिएक्शन, वाटर इसमें ज्यादा ऐड करेंगे, if we add more and more water here, what will happen, that equilibrium will shift towards the right, we will get more and more ions, when we will get the more and more ions, the conduction will increase। छोटा वक्फे के बाद जो है इसको जो है देखेंगे हम आराम से आगे। सिमिलरली दिस एसिटिक एसिड में जब हम वाटर ज्यादा ऐड करेंगे, एसिटेट आयन विल बी मोर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन आयन विल बी मोर फॉर्म्ड, एट पॉजिटिव आयन विल बी मोर फॉर्म्ड, दैट मीन्स कंडक्टेंस जो है इंक्रीज होगी है। So Le Chatelier's principle, if you recall that, if we dilute it more and more ions will be formed। इसका क्या मतलब है कि ये completely, इसका मतलब ये है कि ये completely ionized नहीं हुआ है। I hope that you are getting well। Yes, ये completely ionized नहीं हुआ है। So when we add more and more water, adding more and more water means dilution। If you recall that, adding of solvent to the solution is called dilution, सर अगर हम डाइल्यूशन ज्यादा करेंगे, ज्यादा आयन्स बन जाएगा, ज्यादा आयन्स का मतलब है कि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो गया है। सो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए हैं, जिन्होंने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया था, तो दोज इलेक्ट्रोलाइट्स वर कॉल्ड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन ज्यादा है? नो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ने कम ही आयन्स बनाए होंगे। व्हाट अबाउट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स? सर चूंकि वो सारा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, डिसोसिएशन जो कंप्लीट होती है, ज्यादा आयन्स वहां पर है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो कंडक्टेंस है वो ज्यादा ही होगी। सो दिस वाज रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोलाइट। So what is electrolyte? Electrolyte is a substance which when we dissolve in the aqueous medium, in the solvent, that dissociates into their constituent ions and then conducts the electricity. Is it clear? Sir, we have two types of electrolytes. One is a strong electrolyte and other is a weak electrolyte. What is a strong electrolyte? Strong electrolytes are the electrolytes which dissociate into their constituent ions completely, and जिनकी conductance है, the conductance of the strong electrolytes is very high, and almost the salts, they are the strong electrolytes. So far as this acetic acid is a weak electrolyte, ammonia in the water is a weak electrolyte. So what are the weak electrolytes? They are the electrolytes which does not dissociate complete into their constituent ions, और इनकी जब इनकी कंडक्टेंस जो है वो कम है। So what are the factors which affect this electrolytic conduction? What are the factors which affect this electrolytic conduction? Yes, we will see one by one. What are the factors जो electrolytic conduction को affect कर रहे हैं? And then after that you will be able to differentiate between electrolytic conduction and metallic conduction. Number first is the factors affecting the electrolytic conduction. Yes, what is the topic? The subtopic is factors. We are going to see what are the factors affecting the electrolytic conduction. What is electrolytic conduction? The conductance by electrolytes. Number first is the nature of the electrolyte. Nature of electrolyte. सर क्या मतलब है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का? यस, नंबर फर्स्ट, सर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ज्यादा कंडक्टेंस होगी, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कम कंडक्टेंस है। सो बेटा we have the sodium chloride is the electrolyte, we have the potassium chloride, and we have the cesium chloride. See, we have the cesium chloride. पहले ग्रुप के साल्ट्स, अल्कली मेटल के साल्ट्स हमने लिया है, सोडियम क्लोराइड, और वी हैव द लिथियम क्लोराइड फॉर द सिक, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम,
cesium, francium, etc. You know these things. Sir, nature of the electrolyte. Sir, इनमें जो है, these are all the strong electrolytes. How? Sir, because ये सोडियम लिथियम क्लोराइड जो है लिथियम पॉजिटिव में चेंज होता है और क्लोराइड नेगेटिव में. दिस सोडियम क्लोराइड चेंज इनटू सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन. दिस पोटेशियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सीजियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ओके, किसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी? सर, सबकी ज्यादा होगी. नहीं, सबकी ज्यादा होगी. आई कैन अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन इनमें किसकी कंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी? सर, किसकी ज्यादा होगी? तो वो देखना है. बट अब देखिए, यू हैव टू रिमेंबर दैट जिसकी ज्यादा सॉल्वेशन होगी, पहले हम देखिए कि किसकी ज्यादा सॉल्वेशन होगी. सर, ये सॉल्वेशन दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये सॉल्वेशन क्या चीज है. सी, जब हम सोडियम क्लोराइड को जब हमने पानी में डाल दिया था, तो ये सोडियम के इर्द गिर्द जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए. वाटर का कौन सा, मान लीजिए ये वाटर मॉलिक्यूल है. सर, वाटर का नेगेटिव, ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन. सर, एक को बनाएंगे ना अच्छी तरह. ये है वाटर, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा H पॉजिटिव एंड डेल्टा H पॉजिटिव. ये नेगेटिव आयन इसके साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है. क्लोराइड के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा था? यस, क्लोराइड के साथ वाटर का H पॉजिटिव सर इंटरेक्ट कर रहा था. इज इट ओके? बेटा ट्राई अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. दिस लेक्चर इज बीइंग वॉच्ड ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, माय ऑफिसर्स, पता नहीं कौन कौन देखेंगे इस लेक्चर को और कौन देख रहा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कन्वे मी. दिस क्लोराइड नेगेटिव डेल्टा H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब है कि वाटर जो है इसके इर्द गिर्द जो है स्फीयर बनाएगा. इसके इर्द गिर्द भी वाटर आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल जो इसके इर्द गिर्द भी आएंगे, इसके इर्द गिर्द भी आएंगे. सोडियम के इर्द गिर्द और इसके इर्द गिर्द. ओके, सोडियम के इर्द गिर्द कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे? क्लोराइड के इर्द गिर्द कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे? इफ यू सी दैट यहां पर जो है इसमें भी क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड, इसमें भी क्लोराइड है, इसमें भी क्लोराइड है. हमने देखना है कि किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है. ये कॉमन है इस साल्ट में, क्लोराइड, 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 क्लोराइड. मतलब है कि सोडियम क्लोराइड में जितने मॉलिक्यूल्स इस क्लोराइड के इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, सिमिलरली उतने इसमें होंगे, सिमिलरली उसमें उतने होंगे, सिमिलरली उसमें इतने होंगे. दैट मीन्स जो हाइड्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, सो फार एज हाइड्रेशन इज कंसर्न्ड, सो दीज क्लोराइड्स विल बी इक्वली हाइड्रेटेड. इक्वली हाइड्रेटेड मीन्स इनके इर्द गिर्द जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम होंगे. लेकिन जब हम कैटायंस की तरफ नजर डालेंगे, दिस लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव, इनमें बेटा जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी जिसकी सबसे ज्यादा है, वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा. दैट मीन्स मोर एंड मोर वाटर मॉलिक्यूल्स उसके इर्द गिर्द होंगे. क्या बेटा, एक बार फिर बताइए. जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, that will interact with more and more water molecules will surround them, surround it. जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसके इर्द गिर्द में आएंगे. सो मोर विल बी द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन. जरा स्टेटमेंट को लिखेंगे. मोर द चार्ज डेंसिटी, more the charge density, yes, more is the hydration, more the ion will be hydrated, more the ion will be hydrated. क्या मतलब है हाइड्रेटेड का? कि सर इसके इर्द गिर्द जो है ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे. सर, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? Charge density, you know that it is the charge divided by the mass divided by size. Charge divided by size. Charge divided by size. That size of the cation. Here, size of the cation we are taking into consideration, not the anion, because the anion is same in all of them. तो size जो है, size of what? Size of cation. Charge of cation, size of cation. That is the charge density here. Charge density, yes, charge density. Charge density is the
charge divided by size, the ratio of the charge to the size, that is the charge density. Sir, more the size, remember this thing, more the size, less will be the charge density. इसको आराम से देखेंगे, more the size, charge density, charge divided by size. ज्यादा साइज होगा तो चार्ज डेंसिटी कम होगी, कम साइज होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, बिकॉज सर इनवर्सली रिलेटेड. Sir, charge, so far the charge is concerned, here we have the one positive charge, here we have the one positive charge, here we have the one positive charge, and here we have the one positive charge. समझ में आ गया? सर चार्ज सेम है तो चार्ज डेंसिटी किस पर निर्भर करेगी? चार्ज डेंसिटी विल डिपेंड हियर solely and wholly on, or wholly and solely on, yes, अंग्रेजी का भी ख्याल रखना पड़ता है. Charge density will depend upon the here this size, not on the charge, because sir they have all one positive charge, charge is same. So किसका साइज ज्यादा है? सर इसका साइज ज्यादा है. सर इसका सीजियम का साइज ज्यादा है तो सीजियम की चार्ज डेंसिटी वो सबसे कम है. सर लिथियम का साइज सबसे कम है, उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है. So here the charge density of the lithium is more, followed by sodium, followed by potassium and followed by cesium. Cesium की चार्ज डेंसिटी सबसे कम है, लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है. सो चार्ज डेंसिटी जब लिथियम की ज्यादा है तो हमने कहा कि मोर द चार्ज डेंसिटी मोर विल बी द हाइड्रेशन ऑफ दैट आयन. किसकी हाइड्रेशन ज्यादा होगी? सर लिथियम की हाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होगी. Lithium will be surrounded by more and more water molecules. Lithium will be surrounded by more and more water molecules. लिथियम के इर्द गिर्द जो है सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. बल लिथियम को चलना है, इर्द गिर्द जो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है, चलने में आसानी होगी या दुश्वारी होगी? सर दुश्वारी होगी, नहीं चल पाएगा, बिकॉज इट इज surrounded by much more and more water molecules. ये जो लिथियम है, लिथियम पॉजिटिव है, लिथियम कैटायन है, उसके इर्द गिर्द ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है तो चल नहीं पाएगा. साइज छोटा है, साइज हमने माना है कि साइज छोटा है, हम इमेजिन ये कर रहे हैं कि उसको वो जल्दी दौड़ना चाहिए, लेकिन उसका साइज कम होने की वजह से क्या हो गया कि उसका चार्ज डेंसिटी जो है वो ज्यादा आ गया. चार्ज डेंसिटी ज्यादा आने से क्या हो गया कि वो चल नहीं पा रहा है, सोल्यूशन में वो चल नहीं पा रहा है. तो इसका क्या मतलब है कि उसकी कंडक्शन जो है वो कम है. तो कंडक्शन किसी ज्यादा होगी? सर सीजियम की, सीजियम पॉजिटिव की जो कंडक्टेंस है वो सॉल्यूशन में ज्यादा होगी. सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड दैट द नेचर ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट हैज बियरिंग विद द कंडक्शन इन द aqueous medium. In the electrolytic solution, the nature of the ions, the nature of the cation, the nature of the ion plays an important role. It affects the electrolytic conduction. So यहां पर अगर हम देखेंगे लिथियम क्लोराइड की कंडक्शन सबसे कम है, इसके बाद सोडियम क्लोराइड, इसके बाद पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद सीजियम क्लोराइड. सो इफ आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, द कंडक्शन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स follows this order. Can you comment on this? Can you explain this order? Sir, yes, we can explain this order. So far as the lithium chloride, sodium chloride, KCl and cesium chloride is concerned, chloride ion is same. So chloride will have the least effect or no effect in the electrolytic conduction. Chloride conducts the electricity. I don't say that chloride does not conduct the electricity, but it will conduct equally in this electrolytic solution, in the electrolytic solution of this, in the solution of this and in the solution of this. But lithium, so far as the lithium positive, sodium positive, potassium positive and cesium positive are concerned, the lithium has more charge density, it will be much more hydrated. It is not possible for the lithium to move easily in the solution. So इसकी जो कंडक्टेंस है वो सबसे कम होगी और इसकी कंडक्टेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसकी हाइड्रेशन जो है सॉल्यूशन में वो सबसे कम होगी. जब इसका हाइड्रेशन कम होगा तो ये जल्दी दौड़ेगा, इसकी कंडक्टेंस जो जल्दी होगी. So you can explain such orders. So number first factor is the nature of the electrolyte. So what is the next factor? Is it okay?
सिमिलरली यू विल जो है बेटा ऑफ क्लोराइड, ये जो है एनाइनस के लिए, एनाइनस का जो चार्ज टेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लोराइड है, से आपके लिए घर के लिए, घर में जो आप इसको कीजिए, यू हैव LiF, you have LiCl, you have LiBr and you have LiI। तो आपने इनका जो है कंडक्टेंस ऑर्डर देखना है, इनका जो है कंडक्टेंस ऑर्डर। यू हैव नंबर सेकंड, यू हैव दिस AlCl3, you have NaCl and you have BeCl2। इनका जो है कंडक्टेंस ऑर्डर आप घर में इनको डिस्कस कीजिए कि किसकी कंडक्टेंस है वो सबसे ज्यादा होगी, इनमें और इनमें। सो यू विल टेक द लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, go through the textbook, there are a lot of examples, go through the supplementary material which is available on the SCRT website, so you will find there much more examples. So next factor is the nature of the solvent. Yes, solvent plays an important part. Nature of the solvent. Next factor is the nature of solvent. Sir, how does the solvent plays an important factor, is an important factor in electrolytic conduction? Say you have a water, you have 1 liter of water, you have dissolved 1 mole of NaCl in this, and you have 1 liter of ethanol, you have 1 liter of ethanol, you have 1 liter of water, you have 1 liter of water, you have 1 liter of ethanol, और इसमें भी आपने जो है 1 mole of sodium chloride dissolve किया है। Nature of the electrolyte is same, but what you have changed? Sir, we have changed the nature of the solvent. We have changed the nature of the solvent. So you will find here that water has the highest dielectric constant, ATD. Number second is, can you differentiate now the electrolytic conduction and metallic conduction? Yes sir, we can differentiate. Sir, the main difference between the metallic conduction and the electrolytic conduction, yes, you write down this question, distinguish between metallic conduction and electrolytic conduction. Number first is the metallic conduction में metallic conduction and electrolytic conduction, what is the difference? Sir, conductance is because of the electrons here in metallic conduction. Number first, so here the conduction is because of the ions, movement of ions. क्लोराइड आयन एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है, यहां से वहां। नंबर सेकंड, यहां पर सर मूवमेंट ऑफ मैटर नहीं होता है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, no transfer of matter. Here some transfer of matter takes place. How? Can you tell me how transfer of matter takes place? सर, जब सोडियम आयन यहां से इस साइड में चला जाता है, इस इलेक्ट्रोड में, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, क्लोराइड आयन इस साइड में आ जाता है, दैट मीन्स यहां पर चार्ज भी ट्रांसफर होती है और मैटर भी ट्रांसफर होता है। Whereas in case of metallic conductance there is no transfer of the matter, but here in the electrolytic conduction you should remember that there is the moment of charge as well as moment of the matter. सर, क्योंकि मैटर जो है आयन की ट्रांसफर हो जाती है, आयन की मूवमेंट हो जाती है एक साइड से दूसरी साइड। नंबर थर्ड, यहां पर जो है जो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो कंडक्टेंस है वो जो डिक्रीज हो रही है, बिकॉज द रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड कंडक्टेंस डिक्रीजेस। यहां पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने से कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस थिंग, यू शुड फाइंड much more regarding this difference. What is the difference between the electrolytic conduction and metallic conduction? So in 1 minute मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो है कि सोडियम क्लोराइड, सर आपने ये कहा था कि लेटेस्ट एनर्जी जो है, लेटेस्ट एनर्जी और एंट्रोपी के बारे में आपने कुछ कहा था। So we will have a look, a quick look on that here. So far as the sodium chloride beta concerned, so far as the sodium solid chloride is concerned, when the sodium ion and chloride ion जब ये
आयनिक बॉन्ड बना देते हैं सोडियम क्लोराइड, there is a release of energy that is called the Late's energy. If you recall your bonding chapter of 11th class, Late's energy, latest energy, L-A-T-I-C, Late's energy. There is a release of energy that is called Late's energy. Once we have put this sodium chloride in the water, अगर हमारी हाइड्रोजन एनर्जी डेल्टा एच हाइड्रेशन, जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है वहां पर, दैट इज इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी और ग्रेटर देन द लेटेस्ट एनर्जी, तब जाके सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसॉल्व हो जाता है. लेकिन जो हमारी हाइड्रेशन एनर्जी वहां पर आती है, सॉल्वेशन एनर्जी जो वहां पर आती है, दैट इज लेस देन द लेटेस्ट एनर्जी. इसका क्या मतलब कि सर सोडियम क्लोराइड जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए. यस, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सॉल्वेशन एनर्जी है, जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, the energy released when the ionic compound interacts with the solvent molecules, the energy they released is called the solvation energy. If the solvation energy is less than the latest energy, the molecule will not be dissolved. Okay, I will repeat it again. If the solvation energy, write down this thing, if the solvation energy is less than the latest energy, then the electrolyte will not be dissolved. This compound will not be dissolved in the water. But here in case of sodium chloride, the hydration energy is less than the latest energy, but still the sodium chloride is dissolved in water. So how? Because if you recall that, you know that delta G is equal to delta H minus T delta S. If you recall your thermodynamics, delta H is equal to delta G is equal to delta H minus T delta S. For whole of this process, my delta G should be negative. मेरी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए. इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए. ये डेल्टा हाइड्रोजन जो है, ये एंथैल्पी जो है, ये उसके बराबर नहीं है. सो व्हाट इज माय नेक्स्ट फैक्टर इज हियर द एंट्रोपी चेंज. Since when the water molecules interact, since by dissolving this NaCl will get changed into much more molecules, much more ions. सोडियम क्लोराइड 1, ये 2 में चेंज होगा, 10 सोडियम क्लोराइड पार्टिकल्स 20 में चेंज होगा. सो देयर इज इंक्रीज इन द एंट्रोपी. मेरा डेल्टा एस वैल्यू जो है बेटा वो पॉजिटिव निकल आ जाता है. माई डेल्टा एस वैल्यू इज द पॉजिटिव. ये डेल्टा एस पॉजिटिव होने की वजह से ये टर्म जो है, सारी टर्म जो है ज्यादा नेगेटिव बन जाती है. तो मेरा डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव आ रहा है. तो बिकॉज ऑफ द positive entropy change in the solution, because of the positive entropy change in the solution here, my NaCl gets dissolved. Is it okay? Yes sir, it is okay. I think it is enough for today.